आपका स्वागत है। मैं आशीष आनंद भट्ट। आज जगती में जहाँ पे ये उर्दू की तरफ से स्पोर्ट्स एक आयोजित किया गया है, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम, तो हमारे साथ यूरोप से हमारे साथ पीयूष मड्डू साहब आए हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स इन द मार्तन टाइम्स एंड मड्डू साहब, प्लीज़ टेल अस अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट what is happening in the Jagti about this sports tournament? Well, first of all, thank you for the invitation. I didn't catch what is this Martha Times? Marthan Times. Marthan Times. Okay, well, thank you for your Marthan Times as well. मैं first time है मेरा यहाँ जगती कैंप में. I think it's I would say one of a lifetime experience. Getting to know people. They are also one among us. They are also part of the Kashmiri community. अभी तक थोड़ा बहुत जो भी knowledge था मेरा, it was either कि मैंने किसी से सुना है, पहली बार देखने को मिला कि यहाँ कैंप क्वार्टर्स कैसे हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं, तो काफ़ी आई थिंक काफ़ी यहाँ से ले लो कॉलेज। ये था ट्रिप रहा अभी तक। तो काफ़ी प्रोग्राम्स है। ऑल आई वुड से 2023 में मतलब बहुत फोकस है कि गिविंग बैक, राइट? ग्लोबली देयर इज लॉट ऑफ फोकस। एनीवन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, दे वांट टू गिव बैक। तो वेदर when you came to the Jagti, there are many different difficulties they are facing the Kashmiri Pandit community of our community. So what do you say about these day-to-day challenges? I think holistically speaking, main challenge had to streamline everything. I think in order to scale, काफ़ी programs हैं. There is emphasis on education, there is emphasis on sports, XYZ. But to streamline all this and to be able to do so at a scale, उसके लिए थोड़ा सा I think थोड़ा professional hand holding का ज़रूरत है. सुभाष जी ने चलो काम किया अपने लेवल पे, ऐसे काफ़ी लोग काम कर रहे होंगे, बट उसको एक स्ट्रीमलाइन ना कि ग्लोबली जो लोग रेडी हैं हेल्प करने के लिए, पीपल हु आर रेडी टू डू समथिंग, वो कर पाए और उनको पता चले कि उनके डोनेशन या उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा शायद You are also the director of the Kashmir Overseas Association. So what message you convey to the people from Jammu Jagti community to the world level Kashmir Association community? All I would say is what I've heard is there are still about 40 to 45% people who are in need. The needs may vary, right? Some may be financial, some could be getting the right direction. But in short, there is need, and so we should come out and support them wholeheartedly in whatever manner we can. So yeah, that would be my message. MK Yogi and many Subhash ji has organized this. What do you say? Some few words about that. I think it was nice to meet with Mr. Yogi ji. He seemed pretty politically inclined. He's fairly intellectual. I don't know his background. Maybe he's already doing something politically. I don't know. मैं इनसे पहले मैं कभी मिला नहीं हूँ. But काफ़ी capable leader लग रहे हैं. तो I'm sure if he hasn't, future में उनको मौका मिले कि वो politics join करें और हमारे community को मतलब community की भी help करें. So what message would you give to the Jagti people and Jammu from the overseas? All I would say is I think एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये जो loop है कि getting help from government, इस cycle से बाहर आना. I think that should be the objective. Objective should not be how can we get donations from others. Objective should be how to get self-reliant. Maybe इससे बाहर कैसे आना है, how to be self-reliant. Yeah, that would be my message. So okay. Focus उस पे रहना चाहिए. Okay, thank you giving your time for the Marthan Times. Thank you. देखिए, मार्तन टाइम की तरफ से आज जो यहाँ पे जो ये आयोजित किया गया है, हमारे साथ है सुभाष जी जो उर्दू के ऑर्गेनाइज़र है, जो हमेशा कम्युनिटी में अपना काम करते हैं, और इसके बारे में थोड़े शब्द आप अपने विस्तार से बताइए। मैं सबसे पहले अपने पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे हमेशा सराहना करता है, हमेशा आशीर्वाद रखता है, और हमारा ही समाज आज है, चाहे कोई रूठा है, कोई जो है इस चीज़ में। सो इस चीज़ का है कि मैं सबका इतना ही बोलता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शब्द ही नहीं है मेरे पास
मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किस आप प्रकार हर साल ये कराते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है और आगे आने वाले टाइम में आप क्या इसके बारे में? देखिए, मैं एक समाज का जो है वो एक छोटा मोटा सिपाही हूँ, और सिपाही तब इंसान बनता है जब उसके एक सिपाही को जब बैक होती है। मैं आज कहूँगा कि इंडिया से अगर मैं कहूँ तो मैं पहले जम्मू से अगर कहूँ तो MK योगी जी, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो लैंडमार्क पंकज लिद्धो जी, मैं अगर कमल कोल जी की बात करूं, मैं अगर संदीप जोशी जी की बात करूं, मैं यूरोप से अगर पीयूष मोटू जी की बात करूं, मैं अगर विजय पारमू जी की बात करूं, मैं अगर बात करूं उन योद्धाओं की जो कभी कभार ये सोच होती है। आज जो आपने देखा यहाँ ग्राउंड में जो 250 बच्चा आज आया था यहाँ पे, जो 250 बच्चा खेलेगा यहाँ पे, केवल इसलिए कि कश्मीरी पंडित विस्थापित जो यहाँ कैंप के बच्चे हैं, देखो सभी अमीर लोग नहीं हैं, सबके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है, इधर रिलीफ होल्डर लोग रहते हैं, 10,000 और 7,000 के लोग रहते हैं। ये बेचारे पढ़ाई करेंगे, ये बेचारे दवाइयों का खर्चा पूरा होगा, घर का खर्चा पूरा होगा, लेकिन खेल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं हमेशा कि बच्चे की, क्योंकि आने वाली पौध यही है। अगर हम लीडरशिप की बात करें कि हमने लीडरशिप दिखानी है, तो लीडरशिप के लिए ये पौध है। जब इनको अच्छा, ये नहीं मैं कहता हूँ कि मुझे लीडर बनना है, लेकिन मैंने एक चीज़ सिपाही का उदाहरण इसीलिए लिया कि एक सिपाही जो होता है वो कोई ना कोई होगा हमारे समाज में। मैं अगर आज कहूँ तो MK योगी जी हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक योद्धा की तरह बैठे हैं मेरे को कि भाई सुभाष टेंशन मत ले। यूरोप से भी मेरे साथ यहाँ पीयूष मोटू जी बैठे हैं जिनने कभी कैंप लाइफ देखी ही नहीं होगी, लेकिन आज पीयूष मोटू जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग, अभी डिप्टी CM जी साहब आपने देखे यहाँ पे। तो मेरे कहने का इतना ही है कि जी और जीने, तो बस इतना ही कहूँगा। बल्कि एक पहचान भी मिलती है इससे, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को उसके हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी मिलता है। क्योंकि ये काफ़ी समय से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो इसी और यही उसी की कड़ी में ये आज एक इस इवेंट को मतलब आगे ले जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम सब कम्युनिटी के मेंबर्स को, जितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी है, संस्थाएं हैं जो समाज में भिन्न वर्गों से भिन्न फील्ड में काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, उनको भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे होनहार बच्चे को हम सब लोगों ने आगे आके इसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये मुझे पता है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल और कितना कठिन है बगैर पैसे के, और फिर भी ये बेचारा इतना हौसला रखा हुआ है। ये भी एक समाज सेवा है। लोग हमारे समाज की भिन्न तरीके से सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा भी हमारे समाज को, अपने यूथ को जो आजकल के दौर में जो कि ड्रग अब्यूज़ की ओर जा रहे हैं, उनसे इस चीज़ को, इस जगह पे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना और यंग बच्चों की दिशा को ही मोड़ देना दूसरी इवेंट की ओर, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज। ठीक है सर, थैंक यू। योगी जी, आज ये स्पोर्ट्स आयोजन जो हुआ है उर्जू की तरफ से, तो इसके बारे में आप कुछ अपने शब्द बताइए सर। देखो, मुझे भी एक इनविटेशन था, तो आज हम जट्टी टाउनशिप में आए, जो उर्जू जिम जो है यहाँ आज आगाज़ एक क्रिकेट टीम, जो हमारी जो कुछ क्रिकेट टीमें जो है, कम से कम 16 क्रिकेट टीमें और 4 लेडीज़ हमारी बच्चियाँ जो है, ये छोटे बच्चे जो है हमारे, मुझे लगता है कि 10th तक के जितने भी हमारे छोटे बच्चे जो है वो आज इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और हम आशीर्वाद देने आए थे, और सुभाष जी का हौसला अफजाई, और इन बच्चों को जिस तरीके से 2007 से लेके मिश्री वाला कैंप से जो शुरुआत इनिशिएटिव जो सुभाष जी ने लिया है, और 2011-2010 में जब यहाँ आए तो मैंने देखा कि हर इवेंट, साल में ये 2-4 इवेंट जो है, सपोर्टर्स की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते हैं ये, ताकि यहाँ के बच्चे जो हमारे डिस्प्लेस माइग्रेंट के बच्चे ही नहीं, ये जो हमारे जो यहाँ छोटे मोटे जट्टी टाउनशिप के आगे पीछे जितने भी गांव वगैरह हैं, तो वो भी आज इस क्रिकेट टीम में उनको भी इनविटेशन दिया गया है, और वो भी यहाँ खेल रहे हैं। और यहाँ पर कोई फीस किसी बच्चे से, किसी क्रिकेट टीम के जितने भी बच्चे हैं, किसी से आज तक ना ली गई है,
होती है ना कोई एंट्री फीस वगैरह 25,000 हो, 10,000 हो या 20-50,000 हो, वो नहीं है। और इसमें हमारे डिफरेंट जो भी डोनेशन ऑर्गेनाइजर तरीके से, अब सुभाष जी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि आज मेन जो हमारे यहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे डॉक्टर नीलमर सिंह, जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, तो उसके साथ साथ आज हमारे स्पेशल जो गेस्ट ऑफ आना थे हमारे, वो हमारे पीयूष मोटू साहब थे। और इसी के साथ साथ हमारे संजय रैना जी हैं, वो भी यहाँ आज इन बच्चों में मिलने के लिए बाहर से आए। और तो ये एक सौभाग्य है हमारे कि ऐसे महापुरुष और हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के ही लोग जो बाहर रहते हैं, अबराड में रहते हैं, और उनको वहाँ बैठ के भी कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट। आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं जिसकी वजह से कश्मीरी यूथ को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम तो आयोजन जो है वो यहाँ होते रहते हैं। मसलन मैं आपको कहूँगा कि जो बच्चे स्कूल में अपनी फ़ीस वगैरह जो नहीं दे पाते हैं, तो मैं ओन अपने पॉकेट से उनको थोड़ा सा, क्योंकि आप मुझे जानते ही हैं, मैं भी अपने लेवल पर अपना छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। यहाँ सामूहिक महफिलें वगैरह होती है, यहाँ शादियाँ वगैरह होती है, यहाँ हमारी ग्लोबल सोलर जो हमारे यहाँ की एनजीओ वगैरह जो है, या विश्व कश्मीरी समाज का एक जनरल सेक्रेटरी भी मैं हूँ, और जिसके हमारे कन्वीनर किरण वातल जी भी हैं। तो वो भी अपने लेवल पर अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि क्या बाहर से जो पैसा या जो चीज़ जो यहाँ आती है, क्या वो ज़ीरो ग्राउंड पर जो बेचारे जो गरीब लोग जो है, जिनको ये मदद, जिन लोगों को ये जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए, क्या उस कॉर्नर तक, उस जगह तक ये पैसा जाता है कि नहीं जाता है? उसके लिए आज पीयूष मोटू साहब की नोटिस में और संजय रैना जी की अध्यक्षता में हमने इनकी नोटिस में सारी चीज़ें लाई। और सुभाष उर्दू जिम, जिसमें हमारी डाली जी बैठी है, अंजलि जी बैठी है, फैंसी जी बैठे हैं। और हमारे लिए एक खुशकिस्मती बात यह है कि हमारे सोशल और पॉलिटिकल हमारे जो एक बड़े कार्यकर्ता हैं, और जो यहाँ हमारे विनोद पंडिता जी भी बैठे हैं, विशाल जी बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पर आके इन्होंने भी अपना, ये भी इस वक्त गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ बुलाए गए थे। तो 14 तारीख को भी रहेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। मार्तन टाइम्स की तरफ से यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है और हमारे सामने है ये एक प्लेयर। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक टूर्नामेंट हो रही है, एक सेकंड होल्ड कर दिया। अब ये टूर्नामेंट जो हो रही है उर्दू स्पोर्ट्स की तरफ से हो रही है, और ये सुभाष जी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली लास्ट ईयर ये हम हमेशा कराते हैं। लास्ट ईयर एक लड़के की बच्चे की डेथ हो गई थी यहाँ पे, उसी की मेमोरी में है, विशाल भट्ट की मेमोरी में ये टूर्नामेंट कराया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग एक टुगेदर खेल रहे हैं, तो इट्स अ। और ये उर्दू वाले हर साल टूर्नामेंट कराते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कश्मीरी यूथ को जोड़ने का और ड्रग से दूर रखने का। बहुत ही अच्छा लगता है ये कि अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये लड़के जट्टी के। आज ये सुभाष की टूर्नामेंट है, तो बहुत अच्छा लगता है कि यंग लड़के आ रहे हैं। खेल में आजकल बड़ा स्कोप है। चलिए, थैंक यू सर। देखिए, ये आज जो टूर्नामेंट हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत डिसिप्लिन में, काफ़ी अच्छी नॉक हो रही है। ये पिच कौन भी करवाते काफ़ी हैं? अच्छी है। ये उर्दू की तरफ से करा रहे हैं, ये यहाँ पे जट्टी कॉलोनी में सुभाष। तो सुभाष जी करा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा, देखिए अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ पे। जट्टी के लोग काफ़ी बच्चे जो हैं एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। इससे पहले छोटे बच्चों की गेम हुई थी, अब थोड़े बड़े भी हैं, थोड़े फिटनेस आज भी इसमें किसको दे रहे हैं। बुलाया गया था? आज श्री निर्मल सिंह जी आए थे और हमारे योगी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने इसकी क्या ये हर साल होते रहते हैं टूर्नामेंट? हाँ, लगभग ये हर साल ही होती रहती है। ये आपको विशाल- कैसा लगता है? ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा, खेलने को मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने में भी। और आप थोड़ा चाहते हैं fitness आगे ऐसे और हाँ, भी? बिल्कुल, ये कंटिन्यू होना चाहिए। इससे थोड़ी यूथ जो है यहाँ पे माइग्रेंट्स की, ये अच्छी तरह से यहाँ खेले, फिट रहे, जो नशे वशे से हैं उससे थोड़ा दूर रहे और प्रैक्टिस वगैरह करते रहें अपना अपना। ओके, थैंक यू जी।
देखिए हमारे साथ यहाँ के जगती के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आज का जो टूर्नामेंट औरजू की तरफ से कराया गया है, सुभाष जी की आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे ये में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और हमें अच्छा लगता है और भी होना चाहिए फ्यूचर में। हम MS धोनी की तरह बनना चाहते हैं। बस आप धोनी बनना चाहते हो? हाँ, और क्या खेलना चाहते हो आप? और बस क्रिकेट बॉलर हो कि बैट्समैन हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो? वेरी नाइस। आप? मैं बड़े होकर विराट कोहली बनना चाहता हूँ और ये सुभाष भैया जो ये मैच करवाते हैं हमको खुशी होती है इससे और ये फ्यूचर में भी होना चाहिए। थैंक यू। आप? मैं बड़े होकर MS धोनी जैसा बनना चाहता हूँ। ये सुभाष भैया जो टूर्नामेंट कराते हैं इसमें मेरे को बहुत आप कौन सी अच्छा क्लास लगता में पढ़ते हो? है। मैं 7th। 7th पे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है इधर जगती में खेल के? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हो आगे भी हो? और हाँ, फ्यूचर में और भी हो ये। चलो ठीक है, थैंक। देखिए जो जगती में टूर्नामेंट हो रही है उसमें कुछ ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो यहाँ पे खेलते हैं। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? ये सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा है, मतलब खेलने के माइंड फ्रेश। आप कौन सा प्लेयर बनना चाहते हैं? मैं बैट्समैन बनना चाहता हूँ। आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? विराट कोहली। अच्छा, और आपको क्या बैटिंग में पसंद है? बैटिंग में बाउंड्री वगैरह मारना वाला अच्छे। अच्छा, और आपने कितने मैच खेले हैं? मैं अभी पहला मैच है मेरा। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है ये जो जगती में कराए जा रहे हैं टूर्नामेंट्स, ये क्या अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हो बेटा? बहुत अच्छी है सर, इधर मैच कराने सर हमको मौका मिला खेलने के लिए सर। अच्छा, सर बहुत अच्छा करा रहे हैं सर। वेरी नाइस। आप क्या बोलना चाहते हो बेटा? सर हम पहली बार आए इधर जट्टी में टूर्नामेंट के लिए। बहुत अच्छा फैसिलिटी पूरी है, पानी की। अच्छा, और खाना भी दिया है उन्होंने, सब कुछ दिया है। ठीक है, आप बताओ कुछ। सर जो टूर्नामेंट हो रही है इससे मतलब हमारे न्यू प्लेयर निकलेंगे, सबको मौका मिलेगा। ना कि हमने कभी पहले टूर्नामेंट खेली है, ना इधर हुई थी, इस बार की टूर्नामेंट के लिए। आप बोलो बेटा कुछ। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बार यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू। हमारे साथ हमारे जगती के एक और भाई है जिनका नाम विनीत जी है। विनीत जी यहाँ की टूर्नामेंट के नवीन जी है जो यहाँ के अध्यक्ष भी है और यहाँ का जो देखरेख देखते हैं। ये टूर्नामेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुभाष जी मिश्रीवाला 2007 से, हम पुरखू में रहते थे, 2007 से स्पोर्ट्स की ओर काफ़ी ध्यान दे रहे थे। जो कि इनके पास एक जिम भी थी, छोटी मोटी जिम चला रहे थे वो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे थे अपने माइग्रेंट बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर उन्होंने एक जिम शुरू की जिसमें उन्होंने खाली एक मेंटेनेंस फीस रखी हुई है कि मेंटेनेंस जिम में खेल रही हैं, आगे और से ज़्यादा होगी। इसमें आपको पता है कि आपको रिफ़्रेशमेंट फ्री है, कोई फ़ीस नहीं लेते हैं बच्चों से, उनका खाना पीना और क्रिकेट में बॉल जितने भी जो भी चीज़ें इसमें हम देते हैं, मतलब प्रोवाइड सारा फ्री में है। बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट होती है। अच्छा, जगती की और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? सब प्रॉब्लम्स तो देखा जाए तो बहुत सारी, अगर उन पे बात करें तो बहुत टाइम बीत जाएगा। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बहुत श्रीनगर की डिस्ट्रिक्टों में अगर ग्राउंड देखी होगी, एक जट्टी कॉलोनी एक हब है, बहुत बड़ा कैंप है। अब अगर कैमरा घुमाओगे इस ग्राउंड को देखोगे, इसमें कम से कम जो पानी हमें खरीद के लाना पड़ता है वो पैसे भी हमें बच जाते हैं, हम और किसी चीज़ में वो लगा देते हैं बच्चों के लिए। हमने डिमांड की थी रिलीफ कमिश्नरी डिपार्टमेंट से कि इसमें 4 कोनों में पानी का अपने जो नलके लगने चाहिए, अपना फ्रिज लगना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कितने सारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। 25,000 लोगों की आबादी है यहाँ पे। और डस्टबिन के लिए हमने कहा था, पवेलियन कहा था उनको हमने, और जो फ्लड लाइट्स है वो होनी चाहिए और रनिंग पाथ होना चाहिए। काफ़ी देर से डिमांड है। आपके माध्यम से मैं दोबारा यही अपील करना चाहता हूँ अपने कंसर्न जो हमारे के सिद्धा साहब जी हैं, बहुत अच्छे ऑनेस्ट पर्सन है, कि इस ग्राउंड पे जितना हो सके जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कराया जाए। एक ट्रैक बना, जो कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास खेलने के लिए ट्रैक नहीं है, हमें मैट लाना पड़ता है। आपको पता है वो मैट भी कितना कॉस्टली होता है, 20 से 30 हज़ार का वो मैट पड़ता है सर। चलिए सर, थैंक यू। जगती में काफ़ी इसके अलावा भी और भी मुश्किल आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ की जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताइए आप। बेसिकली यहाँ पे हर किस्म की प्रॉब्लम है, हर किस्म की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आज तक कोई आया जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सारे बोल के जाते हैं फिर मुड़ के नहीं आते। आप किस में जॉब करते हैं? इसके लिए मैं इस प्रोफेशन में अच्छा, मैं अमर हूँ। अच्छा, आप किस कंपनी में हैं? मैं मेडिकल लैब्स में। ठीक है। चलिए, जगती की जो प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। अंपायर जी, मैच बंद हो गया आपकी वजह से, कहाँ चले गए आप?
लाइन बनाओ लाइन बनाओ लाइन